Namaste. Welcome to all of you. So we are in the 7th lecture of the chapter acids, bases and salts. In the previous 6 lectures we discussed about acids and bases in detail, about the classification and chemical properties of acids and bases. And then we discuss about the strength of acids and bases with the help of pH scale and the importance of pH in our everyday life that we covered in the last lecture. In this lecture, we'll start with salts. So let's start with salts now. What is the definition of salt? A salt is a compound formed, कैसे बनता है? Formed from an acid. Acid से कैसे बनेगा? By the replacement of hydrogen of the acid by a metal. For example, we have हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हम क्या कर रहे हैं? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय मेटल सोडियम. ये क्या है? साल्ट है. रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय मेटल पोटेशियम. ये क्या है? साल्ट है. साल्ट इज फॉर्म फ्रॉम एन एसिड. फ्रॉम एसिड कैसे बन रहा है? बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ द एसिड बाय मेटल. Salts are formed when acid react with the bases that we discussed earlier with the help of neutralization reaction. उसमें क्या था? For example, we have base NaOH react with the acid HCl. क्या बनता है? Salt NaCl plus में H2O. So salt is formed when acid react with the base. Now please note that salt does not mean sodium chloride. जब हम salt की बात करते हैं, जब salt यूज करते हैं घर पे, वो क्या है? That is sodium chloride. That is not the definition of this salt. वो example है salt का बेटे. The NaCl is the example of salt. Actually it is common salt. It is called common salt. It is also called table salt. Table salt. For example, if we use here potassium hydroxide, तो उस केस में साल्ट क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड. ठीक है? तो साल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस. एंड साल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड. ये आयनिक कंपाउंड है. ये वाटर में क्या बनाएगा? कैटायन और एनायन, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज. तो साल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड consisting of two parts. One part carrying the positive charge. One part carrying the positive charge. That is called cation. And the other part carrying the negative charge. That is called anion. That is called anion. And the number of positive and negative ions. Number of positive and negative ions are such that the total positive charge is always equal to the total negative charge. यहाँ चार्ज कितना पॉजिटिव? +1 है. नेगेटिव कितना है? -1 है. टोटल चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया. तो साल्ट पे कोई चार्ज नहीं होता. साल्ट के जो पार्ट हैं, कैटायंस और एनायंस हैं, उन पे चार्ज होता है. बट साल्ट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ठीक है बेटे? नाउ पॉजिटिव आयन, जो पॉजिटिव आयन है साल्ट में, वो मेनली क्या है? वो मेनली मेटल है. दे आर मेनली मेटल आयंस. बट इसमें एक एक्सेप्शन भी है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव. इट कैन फॉर्म द साल्ट. हालांकि इसमें कोई मेटल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अमोनियम क्लोराइड. कंपाउंड क्या बनेगा? NH4Cl. ये क्या? एक साल्ट है बेटे. तो साल्ट में जो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो मेनली क्या होता है? मेटल होता है. बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अमोनियम आयन. अमोनियम आयन कैन फॉर्म साल्ट. ठीक है? सो दैट्स अबाउट द साल्ट. साल्ट्स आर फॉर्म व्हेन द एसिड रिएक्ट विद द बेस. एंड साल्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, cationic and anionic part. And the overall charge on the salt is neutral, 0 होता है. ठीक है? और साल्ट में जो कैटायनिक पार्ट है वो मेनली क्या है? मेटल है. इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि अमोनियम आयन है. ये अमोनियम आयन है. ठीक है?
So that's about the salt. Definition of salt properly. तो अपनी पेन कॉपी निकाल लो अभी. Start making your own notes based upon the salts. इसको उतार लो. Then we'll discuss about some examples of salt. That how can you write the cationic and anionic part of the salt? How can you write the chemical formula of salt? That we'll see now. Yes, now let's see some examples of salts and their formulae. Before that, please note down that the first part of the salt is derived from base. जो फर्स्ट पार्ट है ना, जैसे ये सोडियम, पोटाशियम, कॉपर है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, एमोनियम, ये कहां से आ रहा है? ये बेस से आता है बेटे. एंड द सेकेंड पार्ट, ये क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, ये कहां से आता है? ये एसिड से आता है. बिकॉज साल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस ना. तो जो फर्स्ट पार्ट है वो कहां से आता है? वो बेस से आता है बेटे. और सेकेंड पार्ट कहां से आ रहा है? वो एसिड से आ रहा है. अब स्टार्ट करते हैं. देखिए, सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl. इसमें पॉजिटिव आयन, कैटायन क्या है इसमें? जो फर्स्ट पार्ट है ना वो कैटायन है. सेकेंड पार्ट क्या है? वो इसमें एनायन है. इसमें कैटायन क्या है? सोडियम आयन. एनायन क्या है? क्लोराइड है. ठीक है बेटे, ऐसे करना है. सोडियम सल्फेट, फॉर्मूला बताइए. Na2SO4. कैटायन वही सेम है, सोडियम आयन. 2 यहां पे. 2 कैसे आएगी? The valency of sulfate is 2 and the valency of sodium is 1. हम वैलेंसी क्रिस क्रॉस करते हैं ना when you write the chemical formula. So valency of sulfate is 2 and valency of sodium is 1. तो कितने सोडियम हो गए यहाँ पे? 2 है. एंड सल्फेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है? SO4 2 negative. And we have discussed just now that the total charge on the salt is 0. It consists of 2 parts, cation and anionic part. And the total charge on the cation is equal to the total charge on the anion. Total charge कितना पॉजिटिव? 2 पॉजिटिव है. 2 into 1 2 पॉजिटिव है. और anion पे कितना है? 2 नेगेटिव है. So therefore the total charge on the salt is +2 -2 कितना हो गया? 0. तो साल्ट में कोई चार्ज नहीं होता. कैटायन और एनायन दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. उनका जो चार्ज है दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. सोडियम नाइट्रेट, फॉर्मूला बताइए. NaNO3. कैटायन क्या है इसमें? सोडियम आयन. एनायन क्या है? NO3. नाइट्रेट आयन. पोटासियम नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला बताइए बेटे. पोटासियम आयन क्या होता है? K पॉजिटिव. पोटासियम नाइट्रेट KNO3. तो K पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव. कॉपर सल्फेट, यहां पे कॉपर क्यूप्रिक के फॉर्म में है. कॉपर के 2 होते हैं ना, वैलेंसी Cu प्लस और Cu2 प्लस. यहां Cu2 प्लस के फॉर्म में है, क्यूप्रिक फॉर्म में है. क्यू प्लस नहीं है. कॉपर सल्फेट, फॉर्मूला बताइए. CuSO4. तो यहां पे क्यूप्रिक के फॉर्म में है तो Cu2 पॉजिटिव और सल्फेट होगा SO4 2 नेगेटिव. 2 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, चार्ज 0. कैल्शियम क्लोराइड CaCl2. कैल्शियम आयन क्या होता है? Ca2 पॉजिटिव. एनायन क्या है इसमें? क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव. कितने हैं? 2 है, वो आगे आ जाएगा. 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव. ठीक है बेटे. नेक्स्ट कौन सा है? एल्यूमिनियम सल्फेट. इसका फॉर्मूला क्या होता है? Al2SO4 एल्यूमिनियम आयन Al3 पॉजिटिव होता है. एल्यूमिनियम आयन कितने हैं? 2 हैं, वो हम आगे लगा देंगे. सल्फेट आयन ऊपर लिखा था. सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव होता है. कितने हैं? 3 हैं. टोटल चार्ज कैटायन पे 6 पॉजिटिव, एनायन पे 6 नेगेटिव. Charge, overall charge on the salt is 0. Now we have discussed earlier, the first part comes from the base and it is generally the metal ion. ये सोडियम हो गया, पोटाशियम है, कॉपर है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है. ये सारे क्या है?
मेटल आयंस है. And we have discussed earlier today that we have one exception, ammonium ion. It is not a metal. It is a complex of non-metal atoms, NH4 positive, and it forms salts. तो अमोनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या है? अमोनियम आयन होता है NH4 पॉजिटिव, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड का? NH4Cl. इसमें कटायन क्या है? NH4 पॉजिटिव है बेटे इसमें, और एनायन क्या है? Cl नेगेटिव. एक और देखते हैं अमोनियम का, अमोनियम सल्फेट. तो इसका फॉर्मूला बताइए, NH4 होल टू SO4. अमोनियम आयन वही सेम है, NH4 पॉजिटिव, यहां पे 2 हो जाएगा. 2 कहां से है? वही सेम सल्फेट से आया है, और सल्फेट आयन होता है SO4 और 2 नेगेटिव. ठीक है, ये कैपिटल O है ये ऑक्सीजन के लिए. तो ये हो गया some salts and their formulae along with the cationic and the anionic part involved in the salt. ठीक है, तो आपने ऐसे salts और उसके फॉर्मूले लिखने आने चाहिए बेटे, और इसमें कैटायंस और एनायंस क्या है ना, वो आपको पता होना चाहिए. कैटायंस कहां से आ रहा है? वो फर्स्ट पार्ट है और वो बेस से आता है, बेस. और जो सेकंड पार्ट एनायन है ना, वो कहां से आता है? वो एसिड से आता है. ठीक है, so that's about the salts and their formulae, some salts and their formulae. Now we'll discuss about the formation of salts, how salts are formed in a chemical reaction. Yes, now we'll discuss about the formation of salts, how salts are formed by various methods. And we have discussed all these methods earlier when we covered chemical properties of acids and bases in the previous lectures. Let's discuss them again. Formation of salts. First क्या है? By neutralization of acids and bases. Suppose for example we have potassium hydroxide, ये base है, प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है. ये फॉर्मेशन ऑफ साल्ट. यहां साल्ट कौन सा बनेगा? पोटासियम क्लोराइड and water as a byproduct. Formation of salt by neutralization reaction. ठीक है. सेकेंड क्या है? By action of acids on metals. So whenever active metals like zinc react with the dilute mineral acid like sulfuric acid, we have formation of salt along with evolution of hydrogen gas. हमने पहले किया हुआ ये. And how can we detect the evolution of H2 gas? By bringing a burning candle near the gas bubbles. The gas bubbles burst with the pop sound. So suppose we have zinc प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां साल्ट क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है बेटे. एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, इट इज ए साल्ट. इस साल्ट में कैटायन क्या है? कैटायन है जिंक आयन, और इसमें एनायन क्या है? सल्फेट आयन है, +2 -2. ठीक है. थर्ड है बाय एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. इस केस में क्या क्या बनते हैं प्रोडक्ट्स में? साल्ट बनता है, साल्ट, वाटर एंड इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. And CO2 gas turns lime water milky. So we have sodium carbonate. ये क्या है? मेटल कार्बोनेट है. React with acid, hydrochloric acid for example we have. क्या क्या बनेगा? Salt plus water plus CO2 gas. यहाँ salt क्या बनता है? Sodium chloride plus H2O plus CO2 gas is evolved. बैलेंस कर लेते हैं. Similarly, hydrogen carbonate, we have sodium hydrogen carbonate react with hydrochloric acid, formation of salt, water and CO2 gas is evolved. Clear बेटा? Last क्या है? By action of
Alkalis on metals. Alkalis क्या होते हैं? The water soluble bases are called alkalis. For example, base हम ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट विद द मेटल जिंक. इस केस में क्या बनता है प्रोडक्ट? मेटल का ऑक्सी साल्ट, साल्ट कंटेनिंग ऑक्सीजन. यहां क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट बनता है, Na2ZnO2 बनता है, प्लस इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस. बैलेंस कर लेते हैं. यहाँ पे 2 हमने सारे पहले किए हुए ये in the chemical properties of acids and bases. So these are the various methods for the formation of salts. And that's about this lecture. Today's lecture based upon salts and the formation of salts. तो हमने आज क्या कवर किया कि salts क्या होते हैं, examples of some salts and their formulae, and formation of salts by various methods. In the next lecture, we'll discuss about the family of salts and the pH of the salt solution. That we'll discuss in the next lecture. That's about this lecture, today's lecture. See you all in the next lecture also. Till then, thank you. और आप सबको मेरा नमस्ते.